ਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਠਾਠਰ ਗਾਈ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸੰਤ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਕਾਰੀ ਕਾਮਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਸੀਬ। ਸਾਖਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ, ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਸਾਖਤ ਹਰਿ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੈ, ਅੱਛਾ ਗਾਓ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਬੱਕਰਾ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਉਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਖਤ 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 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਰਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਦੁਬਿਧਾ ਭੰਨੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨਸ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਹਾਉ ਹਾਉ ਭੀਤ ਪਇਓ ਹੈ ਬੀਜੋ, ਸੁਨਤ ਦੇਸ ਨਿਕਟਾਇਓ। ਭਾਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ, ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਭਾਬੀਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਦਾ ਲਿਆ ਭਰ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਲੜ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਲੰਘਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮਾਂਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਥ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਦਕ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਕਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁਕਤਸਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਡਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ, ਮਨ ਨ ਕੀਨੋ ਰੋਸ, ਕਾਜ ਵਾਹੂ ਕੋ ਲੈ ਸਵਾਰਿਓ, ਕਿਸੂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੇ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਜਨਮ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਦਿਓ, ਥਾਪੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡ ਘਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਚੱਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੱਕ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੱਕ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਉਜਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੂਕਾ ਬਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ
नहीं सामने आती, जाके पूछया पुत्र दो होणगे, इकट्ठे होणगे कला कला होण? साइंस इत्थे नहीं पहुँच सकती, साइंस कोल इहो जी तकड़ी नहीं जिहड़ी इस चीज़ नूं तोड़ सके। उन्हें आख्या जी कल्ले कल्ले होण, इकट्ठे साਂਭੇ नहीं जाने। एक दा नाम मोहन सिंह है, दूजे का मैंने भुल गया, दोवें मास्टर ने उत्थे। उन्होंने माता पिता थोड़ा जिहा चढ़ाई की, वो कल्ले कल्ले पुत्र उहदे होए। अपना गुलजार सिंह जिहड़ा ना मेरे कोल हुंदा सी किसी वेले, ਉਹਦੇ पिंड की एक बसंत कौर माई, उन्हें संतां नूं आख्या भी मैनू पुत्र दिओ। संतां आख्या अपने गहने लिया दे, वो गहने मंगते होंदे सन, उन्हें गहने लिया दिते। संत अगले साल आए तो आंदी मेरे पुत्र नहीं होया, आंदे ने तू अपनी कुड़ी के गहने लिया के दिते सी, ਉਹਦੇ हो गया। ये तो दुनियावी गल है ना, जी परमारथ की गल है वो भी उन्होंने सिरे की सी। एक हजारा सिंह सी नीलियां वाली का, बहावलपुर के रियासत का। उन्हें आख्या संत जी मैनू सगुरां दे दर्शन कराओ। उन्हें आख्या करा देंगे, 40 दिन साढ़े नाल रहो। जो 40वां दिन होया तो उन्हें आख्या संत जी 40वां दिन हो गया, अजे दर्शन नहीं हुए। संत आख्या तू ये ना समझी मैं सुखने ही दर्शन किए ने, तू कुछ छकाउना है तो भी त्याग कर लै। उन्हें सदाई रगड़ी, वो दसन मुताबक उत्तों प्रकाश उतरिया, गुरु नानक आ गया, गुरु अंगद आ गया, सारे ही सगुरां ने उत्थे दर्शन दिते ने। तो उन्हें शरदाई छकाई सारिਆਂ। इसी तरह ही वो सारे ऊपर चले गए। फिर आंदा मैं गल कोई नहीं की। उन्हें कहा तू छकाउण वास्ते गल की, तू गल दे आंदा गल भी करा देंदे तेरी। मेरा मतलब परमारथ की गल भी एडी वड्डी बड़ी मुश्किल है। जिस तरह सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने बाबे बुढ़ा सिंह नूं कृपा की सी, वाह वाले लाटों की ढक्की विच गया, दर्शन किए, तो सतगुरां ने 12 सरूपां के दर्शन कराए सने सतगुरु राम सिंह के। तो सतगुरां दे बाणी भी जो भी लिखिया है, दर्शन नूं, सतगुरां दे दर्शन नूं सब तो ज़्यादा वडियाई दी है। मुक्ति भी बड़ी वड्डी चीज़ है। जे साडी इन्हां बंधनां तो खलासी हो जाए, बड़ी वड्डी गल है। पर वो कहते हैं हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगा है। जिहड़े उहदे दर्शन के प्रेमी ने वो मुक्ति भी नहीं मांगते, मुक्त नूं विचारी समझते हैं। मुक्त बपड़ी भी ज्ञानी जाके। तो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की है। सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह का वेड़ा जो 30-35 साल का सी, वो बहुत दुनियावी हिसाब नाल कष्ट वाला सी। उन्होंने तो होंदा नहीं कोई कष्ट। उन्होंने सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह प्रदेश चले गए, तो सतगुरां दी लटकी बीबी नंदा सतगुरु हरि सिंह नूं प्रशादा छकण वेले बहुत कुछ बुरा बोलती सी। कई दिन प्रशादा छकण ना जाना, आखना सच्चे पातशाह प्रशादा नहीं छकना है, पूरी औखी होंदी है। अपनी औख की कोई गल नहीं। वो भी गुरु अंश सी। सतगुरु राम सिंह ने हुक्म दिता उन्होंने बई बीबी पानी पुलां हेठ लंघना, रजा सी सतगुरां दी, नहीं मन्नी। इन्ना औखा समा सरकार वालों इन्नी ज़्यादा तंगी भी दीवान लगा होना, तो आखना दीवान बंद करके तो घर जाओ। सतगुरु राम सिंह, सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह तो बाद सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा की। वो सारे सरकारी बंधन जिहड़े ने टूटे। नामधारी पंथ नूं सतगुरां ने वेख्या कि विआह दे विच करजियां विच नप्पे होए ने, दाज दूज बंद किए, तो सतगुरां ने कृपा की करजियां तो बहुत सारे शरीर मुक्त किए। इस तों इलावा वो गल भी की जिन हार से जोड़िया, वो भी कृपा सतगुरां ने की सारे। जिन्होंने एक स्वामी प्रेमादास जी, प्रेमानंद जी सार मिलते होंगे कदे कदे,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰ ਢਾਡੀ ਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵਦਾ ਜੇ ਹਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਥਾਵਰੀ ਹੋਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਸੋ ਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆ ਜਿਤ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥੇਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਦੇਵ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਤ ਢਾਡੀ ਦ੍ਰਿਤ ਆਵੈ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਢਾਡੀ ਕੋ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਦੇਖ ਦਿਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਗਈ ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਚਿਤਨਾ ਆਵੈ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਬੱਚੇ ਆਖੋ ਤਾਂਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿੰਨੀ ਤੁਮਨੋਂ ਧਨ ਕਹਿਆ ਜਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਤੁਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਮੈ ਰੋ ਮਾਨਸ ਕੋ ਜੀਣਾ। ਹਮੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਭਜਨ ਕਰੋ ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਗੋ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਭਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਮਰੇ ਔਗਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਹੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਗੰਤ ਨਾ ਆਵੈ ਤੂੰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ ਹਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹਰ ਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਗਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਲ ਜੀ ਗਈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਮੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ।
जो बच के ही जाना है। ताई बार बार कबीर जी ने लिखा जग का काजल की कोठरी अंध परे तिजमाए और बलिहारी तिनको पैसे निकल जाए। एक कालक की कोठरी में बंदे को वाड़ दो फिर वो ना लगे कालक ये राह सदर ने दसिया कि इस तरह तुम बच के जीना है चीज जोड़ा हमें रोग मन को दिता है उसको तगड़े होकर साथ करके मन को ठीक करके उसको बचना है। वो लड़की एक दिन उत्थे बैठ गई जाके जैसे सत्संग होता सी साधुओं का वो जी गल करना वो समझ ना आए बीबी उन्हें पूछा कि तुम की गल्लां करते हो। उन्हें आखिया असी सत्त की विचार करते हैं। हम कदे सुनी नहीं सी यहो जी गल होती जी मैनू ये समझ नहीं आई कि सत्त की है सत्त की है मैं समझ नहीं आई चंगी गल दसो। उन्हें आखिया बीबी गल है कि इस संसार के उत्ते माया तो भगवान कट्ठे हुए हैं उन्होंने असा वखरा करके भगवान के मगर लगना उन्होंने फिर भी समझ ना आई। फिर उन्होंने आख्या भाई तू की काम करती है मतलब मैं दुध बेचनी है। उन्हें आख्या भी तू दुध बेचनी है दुध कोई रड़ा तो नहीं पाती पानी तो नहीं पाती वो नहीं पानी तो पानी पानी सिखाने रोज़ पानी पा के बेचते हैं। उन्हें आख्या फिर बीबी जो दुध है ना वो सच है जो पानी है वो झूठ वो मन पर गल लग गई। जिस वे वो घर आई उन्होंने दुध का वक्त है चोण का तो वो पिता ने जो कोड रखा से ना वो शब्द जो घर आएगा तो चोरी गल करने जो पता भी नहीं लगे गल भी सामने हो गई तो उन्हें आख्या भी बीबी भांडा साफ करके लिया भाव भांडे पानी पा के लिया। उन्हें भांडा सच्ची साफ करके लिया भांडा साफ करके लिया तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया है गल का मतलब चंगी तरह साफ कर उन्हें चंगी तरह कपड़ा लैके ना साफ किया। फिर और बहुत इस गल की नाराजगी है उसने रात को उस कुड़ी समय ना बन लिया उन्होंने कुटना शुरू कर दिता। उन्होंने आखिर तेन मैं उत्थे विआवांगा जिसे सारी उम्र दुखी रहे तू इन्ना मेरा नुकसान किया। राजा वीर यात्रा करता रात को उसने वो देखा लड़की मार पै रही है तो लड़की मानती नहीं। अगले दिन उन्होंने राजे ने लड़की के दूजे दोनों कचहरी बुला के पहले तो लड़की को गाड़िया कि तुम फिर क्यों नहीं हाथ में जाके रखा आखिर मैं ये झूठ नहीं करना। फिर उस गुजर ने गाड़िया भी तू क्यों मारना तू आंदा मैं रात उत्थे विआवांगा जिथे तो सारी उम्र दुखी रहे तो अज तो मेरी लड़की है मेरी लड़की के मरना भी चली जाए तुम जा कर चला गया। कुछ समा पा के राजे ने सोचा कि लड़की माता पिता तो वखरी हुई है उन्होंने पूछा उन्हें जाके पूछा कि तेन कोई ने कहा मैंने कोई तकलीफ नहीं तुम चाहिए कि उन्हें कहा चाहिए मैंने वो है जोड़ा मैं थोड़े जे मिनट संतां की संगत की है तो मैं गुजर की लड़की तो हट के राजे की लड़की बन गया हूँ जे तो मन उठा होया आता तो वो जरूर रहता लड़की आती देखो जी चंगा सत्संग किया मैं माफ करो बकरे कर दिता और वह मन सत्संग वाला बनया उन्हें फिर वही मन की वो ध्यान च गल आ गई कि मैं गुजर की लड़की गरीब तो हट के देख राजे की लड़की बन गई कि वड्डी गल सत्संग ये इतों की गल है। इस तो बाद जो उस संसार से जाना है आदमी ने उस जगह में जिथे लिखा है राणा रंगा या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगाह कह न को आओ बैठ आदर सो देव कामली पावै तू पासा जन्म मरण न होए विनासा। उत्थे ये ना कोई आके तू कितने आ गया उत्थे आखो भी आओ बैठ आदर सब देव सुख देव वो गल जी ना इस तो अगे जाके वो गल होनी है ये अवश्य होनी है कोई रोक नहीं कर सकता। मैं अगे कई बार आख्या भी जिस तरह किसी को आखिए जे बुलाया चलिया तो अंग्रेजी पढ़ ला तेरी बोली कहीं समझ नहीं होती जब तुम श्याम चलिया तो श्यामी पढ़ तो आखिर जी मैं नहीं जाता मैं तुम्हें बड़ी जाती समझ मैं जाता ही नहीं बाहर ये तो गल मनी जा सकती है।
पर जे कहे बाकी तो सत्संग कर तू मर जाना है तो उत्थे भजन पानी बिना नहीं गुजारा देखो आके मैं मरदा ही नहीं भजन पानी तां ही जोड़े नहीं मैं मरना है ये गल होनी नहीं अपने आप जो मर्जी आदमी सोची जाए एक सिंह से बड़ा भारा शरीर वह हसमूह उसना बोल सच्ची बात है जाना उन्हें जीप बैठे होना तो संतां ने आखना थोड़ा जिहा परा हो तो बड़ा चौड़ा सारा जिन्होंने अपने अगे अपनी गिठ आपे करके आखना देखो मैं एक गिठ थां बैठा तो गिठ तो ये भी पूरा शरीर होना इधर भी होना पर उन्हें अपने आप अपने जी मैं गिठ थां बैठा ये इतने जो मर्जी करती है पर उत्थे कोई चाया नहीं बगैर सवरां दे रूप मनण तो तुहानूं कल भी दस्सिया जी कि दर्शन सिंह नूं सचदेव नूं किस तरह ख्याल आया कि मैं बड़ी गलती की जिहड़ा मैं सूबा अपने आप नूं आख्या ਉਹਦੀ माफ़ी मंगी उन्हें पर सवरा ने कृपा करके एक वो समा ही जिस वे वो सूबा अपाउंदा वो गलत समा सही समा आया तो उन्हें ये गल कर ली पर सवरू कृपा करे गलत समा आवे ना वो ना भी गलत समय च असीं तुर जाइए तो फिर अभी साडा विचार है वापस जाए नहीं तो कस्टम वाले थां लंघ जाते जिस वे तुहानूं पिछा गल भी नहीं कर दिंदे अगले पिछा जाना तो एक वक्री गल है तो समझो कि भजन बाणी करो तो एक कदे सोचा करो मैं कदे कोई गलती नहीं करता असीं हर वेले गलतियां करते हैं वो बख्शी हर वेले होनी चाहिए जो भजन करके बाणी पढ़ के ये ना दिल की गल आए भी मैं कर ये दिल जो भी आपे लाए अपना प्यार वो अपनी कृपा भजन बाणी करवाने लाता तां ही बख्शिश होंगी अपने आप आदमी कुछ नहीं कर सकता तो खास ने बड़ी कृपा की मेहरबानी किया है कुछ आपस में मेल मिलाप होया है अरदास करा करो सवरण चलना ये विचार अपने दृढ़ करो कि उन्होंने भी सानू कोई नाराजगी नहीं जिन्होंने कोई विचार नहीं पर साढ़े विचार जोड़े ने ये इस तरह जो सवरण के मगर लगना सवरण की उन्होंने सारी सरगति होनी है बहुत सारिया मिसाल ने सवरू प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जो नहीं सन मानते जो दरगाह गए तो उन्होंने दरगाह थां नहीं मिले फिर वापस आके किसी किसी को हुक्म आया तो उन्होंने फिर माफी मंगी तो फिर दरगाह गए ये गल हर एक तो समा नहीं मिलता जिन्होंने मिसाल कायम की जिन्होंने सवरों ने कृपा करती वापस आके सवरों को माफी मंगी तो गए उन्होंने जगह मिली उन्होंने सानू सिक्ख्या लैनी चाहिए भी असीं इस तरह ना करिए सानू की पता मुझे आने का थोड़ा मिलता है कि नहीं मिलता पंजाब का पिछा ना करने वाले मैं सब तो पहले किस तरह पंजाब इतना चंगा है इतना आगू है उस वास्ते एक बार गुरु नानक को याद करांगा पंजाब में अपने सारे गुरु सारे जिथे कवियां ने कविता लिखते हैं ये गल आखी वैसे जराब की निंदा की उन्होंने पर उन्होंने टांगा अपना उन्होंने आख्या जब से प्रधान बनया क्लास पंजाबियों का तो गुरु नानक ने आख्या ऐसा मजबूर न पीते जे का पार उठाए जे पीता बस दूर होए बड़ पावे आए तो फिर खसमो कटे खाए गुरु नानक ने साडा जीवन ऊंचा किया हर चीज जोड़े बोलते हैं शब्द जवान उन्होंने लिखने की जाने वास्ते गुरु नानक ने सानू ये लिख पैदा करके दी बड़ी खुशी होती है इस गल की कि बहुत सारे थां उस पंजाबी के गुरमुखी के अखरां के पाठ होंगे हैं और जो कुछ वो लिखा है जो कर सकिए पंजाब का मान होर भी बढ़ा सकते हैं मोटिया मोटिया गल्लां ने कि हर के नाम का दुख पावे हर को नाम सदा सुनता है पहलों सुनते ही जपजी साहब की 20वीं पौड़ी गुरु नानक ने ये आख्या भरिया बस बाबा का सानू वो धुप है नावा गया जो ये धुप जाएगी साड़ी लड़ाई मुक जाएगी अभी दूजिया
जिस तरह परमात्मा जी ने दसिया सी प्रोफैसर गुरचरण सिंह जी कमरे जा वड़ते सन तो झगड़ा मुख्य बात हो जाता। अभी इस तरह ही सारे झगड़े मुका सकते हैं अपने सतगुरु रामदेव पातशाह ने जो कुछ पंजाब के उस वेले किया जिस वे कोई अंग्रेज के खिलाफ ना नहीं सी लै सकता। उस वे भी सतगुरु राम सिंह ने अपने हुक्मनामे लिखा कि अखर पढ़ाने गुरमुखी के लड़के लड़कियां मौत आउंदी दे नाल सिद्धां वास्ते भी लिखा उन्होंने अखरां विच इहो जी चीज़ लिखी गई जिहड़ी रही दुनिया तक रहेगी। क्योंकि गुरु नानक को असीं इस तरह समझते हैं कि वो जदों दुनिया नहीं सी उदों भी हैगा सी, जदों दुनिया नहीं रहनी उन्हें उदों भी रहना। उन्होंने मेरे इकरार किए ने सारा कंज भोगी नाथ धर्मकार वो गल्लां उन्होंने एवें नहीं हैगियां। सतगुरु राम सिंह ने जिहड़ा राह अख्तियार किया उस से चल के महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया। फिर तुहानूं पता अफ्रीका के और कई देश किसी करता भी आजाद हुए बगैर किसी खून खराबे तो बगैर गोली लूट तो। सतगुरु राम सिंह ने एक अपने हुक्मनामे में लिखा कि मंत्र शब्द नाल पैदा किया है। कई गाँव वाले बड़ी कोशिश करते हैं कर सकते मिटा दो नामधारी मंत्र क्योंकि मंत्र शब्द नाल पैदा किया सतगुरु राम सिंह ने वो मंत्र शब्द नानक लेके आए। आज सच विवाद सच है भी सच नानक भक्ति की सच सारे समय में सतगुरु ने मैं अर्ज करांगा कि जिस तरह डॉक्टर वीर सिंह होरी ने इन्होंने दसम साहब का बहुत अध्ययन किया। दूसरे भी ये पढ़ना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी लिखा एक नाम बिना नहीं कोट प्रति वेद उचार प्रसाद सुधी। वेदां के बारे भी ये लिखा वेद पुराण कहो मत झूठे उठा जो न विचारा। मैनू इस गल की बड़ी खुशी है 1983 के सानू नामधारियों ये सेवा करने का मौका मिले। इस गल की बड़ी खुशी है कि सतगुरां ने ऐसी कृपा की कि इन्ने बड़े घट सानू खुशी प्राप्त हुई है, कोई शिकायत नहीं आई किसी पास। उन्होंने बड़े भाग ने जिन्होंने जिम्मे गल लग जाती है खास करके संभोग वाले सिखा ने बहुत सेवा की। मैं पंजाबी प्रेमियों ये अर्ज करांगा कि जो कुछ बाणी सतगुरां ने लिखा वो जिन्ना कुछ कर सकीए वो साढ़े लाए होता है। बाणी इहो जी चीज लिखी गई है कि इस संसार से मनुख किवें आउंदा है, क्यों आउंदा है, काहदे वास्ते आउंदा है ते उन्हें जाना कित्थे है। सब तो जरूरी चीज़ जी है वो बंदे वास्ते ये है। कोई फैक्ट्रियां ला ले किसी पास बाहर देश चला जाए देश रहे तो उसने जाना ही जाना है संसार में। वो वास्ते जब तब का बंद वेल का लंघा वेला ये चीज़ा साढ़े आ जान अभी पंजाब में होर भी बहुत बना सकते हैं। मैं बहुत पढ़िया लिखा नहीं, बहुत गल्ला बुलाया नहीं। मैं ये देखता कि जिस वे प्रहलाद हम ना लगन वास्ते आख्या गया तो उसकी कमजोरी अकाल पुरख ने पीढ़ी का रूप धार के उस समय से तुर के दूर कर दी तो उन्हें भज के जाके जपी पा ली। सानू इस वे पीढ़ी दूसरी देख के छिपा दी उन्हें एक राह तैयार कर लिया थी। पर सतगुरां ने कृपा की है सानू बंदे कहते दसते ने तुहानू पता अमरीका में पोस्ट टू पोस्ट सिख बनाए ने बने ने जेडे वो मास शराब वगैरह बिल्कुल नहीं खाते पीते। मैंने बड़ी हैरानी हुई कि अमरीकन सिखा दे लड़के लड़कियां मसूरी में पढ़ते थे वो
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਧੁੱਪਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਦਾਤਨ ਦਾ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਨਯੋਗ कुलपति जी और सब प्रबंधक वर्ग, सेवादार और सब छात्र, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने विद्वान लोग जो हैं वो बहुत विद्वता से बोले हैं और उनकी शब्दावली और उनका कहने का ढंग, आगे पीछे कौन कौन शब्द कहना है, इतना सुंदर था कि मैं क्या कहूँ। मैंने एक बार देखा, पंडित सुंदरलाल जी का नाम आपने सुना होगा, बनारसी दास चतुर्वेदी जी को भी आप जानते होंगे। हनुमान रोड पर पंडित सुंदरलाल जी रहते थे, मैं अक्सर उनको मिलने जाता था। लेख लिखा था तो उनके ही लेख के शब्द आगे पीछे करके सुंदरलाल जी ने ऐसे सुंदर बना दिए तो उसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये आप लोग सब विद्वान हैं। तो मैं सदगुरु राम सिंह जी, गुरु नानक देव जी के घर का एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं वैद्य जी को वो पुस्तक दूंगा जिसमें ये लिखा है कि गुरु नानक और उसके पहले क्या क्या हुआ। सूरज वंश लिखा है, तो जो लव कुश जी के समय लड़ाई झगड़े हुए उससे कुछ लोगों ने उनके परिवार से वेद पढ़ने शुरू किए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी लिखा है, जिन्हें वेद पढ़ो सो वेदी कहाए, तिन्हें धर्म के कर्म नीके चलाए। तो उसमें ही वो आगे सारा कुछ लिखा हुआ है, मेरे को सारा याद नहीं। आगे लिखा है, तिन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दे जाता पे सहाय। वो गुरुदेव सिंह जी को मैं दूंगा, आप वो सुनाएंगे, आपने हिंदी में कर लेना, देख लेना। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के शब्द हैं जो उन्होंने लिखा है। तो हम समझते हैं कि ये परंपरा भारतीयता की आदिकाल से चली आ रही है। जैसे गुरु नानक जी के बारे में लिखा है, पालन हेत सनातन नेता, वैदिक धर्म रखन के हेता, प्रगट भय वेदी कुल केता। तो उसमें हमारे एक इतिहासकार ज्ञानी ज्ञान सिंह जी थे, उन्होंने ये लिखा है कि हवन के बारे में गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, ये तो धर्म हमारा सार, करत रहे नृप मुन अवतार, सो तो हम भी करना चाहे, जाते पंजाब भारतवर्ष एशिया नहीं, जाते सब सृष्टि सुख है। एक तो है दुर्भिखत भारी, है पढ़ रहे हो न बरसत बारी, दूसरे भारत वर्ष मजारे, महामरी पड़ रही है पारे। तो
वो उसमें लिखा है कि हम जग होने से वर्षा खुश हो कन जल बहु बरसा है। वो क्रोध से नहीं, खुशी होकर के बारे में आप सब जानते हैं कि गीता के शायद 7वें 8वें श्लोक में लिखा है, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, वो सब आप जानते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ है असुर अदम अभिमानी। तो इसी का ही गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है कि जब जब हो तो अरिष्ट अपारा, तब तब देह तरत अवतारा। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। तो ये दूसरी बात नहीं है, सब हम एक ही हैं। सिर्फ जो सियासी आदमी, जो पॉलिटिकल आदमी होते हैं, वो एक दूसरे को अलहदा करके अपना फ़ायदा उठाने के लिए अंग्रेज़ ने ऐसा किया। मैं वैद्य जी को दूंगा 2 छोटे छोटे पैम्फलेट हैं जो 1912 के छपे हुए हैं। सिख भाइयों से ये वहाँ लिखवाया गया कि अंग्रेज राज की बरकतें। तो उसमें एक और लिखा है, उसमें ये लिखा है कि जैसा हमारा ये कड़ा है, कच्छ है, ऐसा अंग्रेज़ को मानना भी हमारा ये धर्म है। तो उन लोगों से फिर ऐसा हुआ कि सिंह सभा बनाई गई। सिंह सभा बनाई तो उन्होंने अंग्रेज़ के कहने से कुछ नहीं किया, तो बदल के दूसरी सिंह सभा बनवा दी जो अंग्रेज़ के कहने से कर रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि ये शरीरधारी गुरु नहीं होता। तो गुरुबानी शायद मैं पहले दे गया था या नहीं, हिंदी में गुरु ग्रंथ साहब छपे हुए हैं, उनको आप पढ़ो। तो सारी बानी में यही लिखा है कि गुरु जो होता है वो खाता है, पीता है, पहनता है, बोलता है। सतगुरु पुरख अमृतसर, अमृतसर सतगुरु सतवादी जितनाता कौआ हंस हुआ वो है। इसमें लिखा है कि जो अमृत वचन सुनावा है। ऐसे ही लिखा है कि तिस गुर को छादन भोजन पाठ पटंबर बहुविध सत कर मुख संचाओ, तिस पुण्य की फिर तोट ना आवे। ये सारा शरीरधारी के लिए लिखा है। और लेकिन उनका ऐसा प्रचार हुआ कि हम लोगों को बांट दिया कि बेतारीफ। आप देखिए कि जब से संसार बना है उसी समय से अवतार होते हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं और धर्मियों को बढ़ावा देते हैं। गुरबानी में ऐसा लिखा है। हम एक किताब ऐसी मैंने देखी, उसमें लिखा गुरु काल 1526 से लेकर 1765 तक गुरु हुए, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, न पहले हुए न पीछे हुए। तो भाई गुरदास जी ने लिखा है कि सुख राजे हरिचंद्र कर नार सोतारा लोचन रानी, साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरबाणी। सतयुग की बात है। सतयुग में गुरु था और गुरबाणी थी। और राजे हरिचंद्र की रानी रात को चोरी सुनने जाती थी। तो सारा कुछ उसने लिखा है। और गुरबानी में ऐसे लिखा है, नामा छिबा कबीर जोलाहा पूरे गुरते गत पाई। कौन था? रामानंद जी थे, उनके गुरु। उनको पूरा गुरु गुरबानी में लिखा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 1526 से पहले गुरु नहीं था? गुरबानी में ऐसा लिखा है। लेकिन गुरबानी की बात ख़त्म करके अंग्रेज़ ने अपनी बात चला दी। तो ये शुभ कार्य जब होता है तो भगवान की बहुत कृपा होती है आदमी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, तो अच्छे तरफ वो चलता है। ये सदगुरु जी ने कृपा की, दिमाग में आई तो अच्छी शुभ लगन है इसके। सदगुरु राम सिंह जी के बारे में सदगुरु राम सिंह जी ने कहा है कि ये जितनी देर धर्म नहीं पनपता और गौ की रक्षा नहीं होती, ये मड़ा कहते थे, ये मड़ा नहीं जाएगा। तो सदगुरु राम सिंह जी ने आना है। जब वो आएंगे तो वो तो खुश होंगे, हम उससे ज़्यादा खुश होंगे। हमें सब सदगुरु जी के दर्शन होंगे। और ऐसी जो कोई भी संस्था बनती है
उनके चरणों में रखेंगे तो ये सफल हो जाएगी। तो एक हंसपाल जी ने कहा है कि मेरे ऑपरेशन के लिए बताया है, उसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, वो यह है कि जो मेरा डॉक्टर फिजिशियन वो थाईलैंड में रहता है, उसका नाम नरेंद्र पाल है, वो मेरे को कहने लगा कि वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, एमडी है, वो कहने लगा ये टेस्ट कराओ, ये कराओ, पता नहीं 1 वर्ष के 6 महीने। मैंने कहा तुम डरते क्यों हो, आदमी 1 बार मरता है, 2 बार नहीं मरता कभी। तो जब टाइम लिखा हो तो हो ही जाना है। हमारे गुरबानी में लिखा है, गण घाले सब दिवस सास नह बढ़न घटन तिल सार, जीवन लोरै परम मोह नानक तेऊ गवार। तो मैंने कहा तुम तारीख मुकर्रर करो, तारीख मुकर्रर कर दी, लेकिन उसका मेरे साथ बहुत प्यार, उसको टट्टियाँ लगी फिक्र से, तो कोई दवाई खाए कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे को कोई चिंता सदगुरु जी ने बिल्कुल नहीं होने दी। मेरे साथ 30-35 लड़के थाईलैंड से चले गए, तो मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था, जो उनके वो खुले खुले कपड़े हैं मैंने अपने बनवा लिए थे कि मैंने वो नीले, मैं नीले के बारे में थोड़ी बात करूँगा जरूर, वो नहीं डालने। तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में उसको एक ट्रॉली के ऊपर जा रहा था, तो वो लड़के बाहर खड़े थे, तो मैंने हंसकर ऐसा किया, वो तो बहुत सुकड़े खड़े थे। तो 9 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ है, 11 बजे के करीब मैं बाहर आ गया। तो 2 बजे मेरे को पूरी तरह होश में मैं आ गया। तो वो लड़के कहने लगे कि आपको पता नहीं था ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, तो आप तो हंस रहे थे, हम सुन रहे थे। और वो डॉक्टर जो मेरे साथ था, डॉक्टर नरेंद्र पाल, बगैर दवाई से उसकी टट्टियाँ हट गई जब ऑपरेशन हो गया। और एक बहुत ज़रूरी बात है, ये क्यों हुआ ऐसे, मेरे को डर नहीं आया और ऑपरेशन में कोई तकलीफ नहीं हुई, डॉक्टर भी मान गया, सबके मन में सदगुरु बैठता है जाकर, वो उनके मन को प्रेरणा दे देता है। ऐसे वो सारे भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में, यूरोप में जितने हमारे नामधारी सिख रहते हैं, उन सब ने बहुत भजनबानी किया है इस कार्य के लिए। तो जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो कुछ देर बाद मैंने कहा अब ये ख़त्म कर दो, बंद कर दो, हो गया। तो वो कहने लगे जो रोज़ भजन करते थे उनको आदत पड़ गई, अब हम क्या करेंगे। जैसे एक आदमी की नौकरी छूट जाती है तो वो कहता है कि अब मैं रोटी कैसे खाऊंगा। तो उनके मन में ऐसी ये सदगुरु जी ने कृपा की, उनकी भजनबानी की ताकत जो है वो सबसे बड़ी है। आदमी की सिमरन की ऐसा लिखा है कि कूंज एक जानवर है, पक्षी है, वो अपने बच्चे बर्फीले पहाड़ों में देकर आ जाता है। वो कहते हैं जितने उसको याद रह जाएं उतने बच जाते हैं, जो भूल जाएं वो ख़त्म हो जाते हैं। गुरबानी में लिखा है, उडे उड़ आवे सह कोसा, जिस पाछे बचरे छरिया, तिन कमण खिलावे कमण चुगावे, मन में सिमरन करया। तो सिमरन की बहुत ताकत है। तो हम लोग भूल रहे हैं, वो हम जब ऐसी सभा में बैठते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसको पक्का करें, इसकी आदत डालें। जब हम चलते फिरते हैं तो अपना जो किसी ने अपने गुरु से पूछा उसका नाम का जाप होना चाहिए हर समय, तो इससे बहुत सी व्याधि जो ख़त्म हो जाती है। मैं नील के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। एक तो हंसपाल जी ने कहा है कि लड़कियों वालों को हटाया, लड़कियों को गुरु राम सिंह जी ने। आजकल भी मर रही हैं, वो पेट में मर रही हैं। साथ ही उसमें एक वीडियो बनाई जो कुछ अंदर क्या हो रहा है। तो कहता है जब वो दवाई या कोई औजार जो अंदर गया तो मैं देख रहा था कि वो लड़की डर रही है, उसकी हृदय की गति 200 के करीब चली गई। जब वो उसको काटने लगे तो ऐसा कहता है कि ये जैसे गाजर मूली काटते हैं ऐसे उसको कटा गया, और वो तड़प रही थी। और जब उसके सिर को पकड़ने के लिए एक सन्नी गई तो वो उसका खोपड़ी जो है वो काटे बगैर बाहर नहीं निकल सकती। तो वो बहुत
वो तड़फी, ये हमारे साथियों को अखबार में छपा है, तो ये वैजी दे देंगे आपको, हिंदी में कर लेना इसको। तो वो तोड़ रही थी क्योंकि सिर का हिस्सा बगैर तोड़े निकल नहीं सकता। वो हत्या घिनौनी खेल को पूरा करने में 15 मिनट लगे। इस दर्दनाक दृश्य का अनुमान इस बाद और क्या लगाया जा सकता है इससे बढ़कर कि जिस डॉक्टर ने ये गर्भपात किया उसने केवल फतूर बस ये इसकी फिल्म बना ली। उसने जब आप फिल्म देखी तो अपना क्लिनिक छोड़ के दौड़ गया, वापस नहीं आया। इस फिल्म साइलेंट स्क्रीन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन होना ने देखा तो उसने इतने पंगड़ गए कि उन्होंने अमेरिकी पार्लियामेंट के हर मेंबर को ये फिल्म देखने की बेनती की। तो सरदार बेअंत सिंह ने बहुत सेवा की है देश की, पंजाब की। आप जानते हैं पंजाब में कोई बाहर निकल नहीं सकता था, तो उसने अपने सिर पर खफन बांध कर सारा काम किया। तो नामधारियों के लिए भी जो कुछ सरदार बेअंत सिंह ने किया है वो बेमिसाल है। उनकी जो हमारी यादगार वगैरह बनाने के लिए जगह दी और रुपए दिए, अपने आदमी लगाए। और एक लुधियाना में जगह थी वो सरकार की, तो वो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, उन्होंने कहा कि ये 7 करोड़ की जगह है। उसने कहा 700 करोड़ की तब भी देंगे, इनका कुर्बानी का क्या दाम दे सकते हैं। मैंने उससे बात की थी कि ये गर्भपात बंद होना चाहिए, उसने मेरी बात मान ली, लेकिन वो बेचारे चले गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी जितनी स्टेट है वो स्टेट वाले इस बात को माने कि ये गर्भपात बंद होना चाहिए। तो बहुत बड़ा पाप है जो हमारे भारतवर्ष को दिखने में कुछ नहीं आता लेकिन नीचे ले जा रहा है, हमारे समाज को नीचे ले जा रहा है, हमारे धर्म को खत्म कर रहा है ये सारा जो कुछ हो रहा है। तो नीले के बारे में द्वापर युग की बात है। भगवान कृष्ण के जो गुरु संदीपन जी थे, उनके घर वाली माता सतभामा, उन्होंने देव पितरों का लंगर किया। उनमें ताकत थी, वो बुला लेते थे, वो भोज किया। तो सब जो देवता वगैरह आए तो बूहे के बाहर खड़ गए, अंदर नहीं जा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा माता सतभामा को कि तेरे सिर पर जो कपड़ा है उसमें एक तागा नीला है। उसने कपड़ा बदला तब वो लोग आए। तो ये बात है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जब वो अलोप होकर माछीवाड़े से निकले तो उन्होंने सुरमे का पानी बना के उसमें रंग के वो कपड़े डाले। जब वो सूडी कौल जी के पास गए हैं, मैं गुरुदेव सिंह जी को सारा दे दूँगा इतिहास में, तो सूडी कौल जी ने कहा ढेलमा गांव में कि सदगुरु जी आपने ये तुर्कों वाला बाना क्यों डाला है। तो सदगुरु जी ने कहा इस समय के लिए किया है। हाँ, फिर उन्होंने एक लीर करके उसको फाड़ा और आग में जलाया। साथ ही एक पंक्ति है गुरबानी में गुरु नानक की, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया, लिखा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको उल्टा दिया, नील वस्त्र ले कपड़े फाड़े तुर्क पठानी अमल गया। तो सूडी कौल जी ने क्या कहा, वो कहने लगे देखो राम राय ने तो उल्टाई थी तो उनको गद्दी से खारिज कर दिया गया। एक तो पहली बात है कि राम राय गुरु नहीं थे, गुरु को अख्तियार है वो अपने बदल सकता है। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है इस तुक को उल्टाने के लिए गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरकृष्ण और चार साहबजादे, इनका शरीर की आहुति दी गई है इस तुक को उल्टाने के लिए। तो उस तुक को उल्टाने के लिए ये आहुति दी गई है, तो कुछ लोगों ने उसको धर्म बना लिया है और कितनी पवित्र आहुति डाली गई सगुरुओं की और सगुरु के साहबजादों की कि ये नहीं डालना। एक मुसलमानों के इतिहास में लिखा है कि
उनको खुदा का संदेश मिला हज़रत मूसा को कि तेरी सबसे जो प्यारी चीज़ है मेरे ऊपर कुर्बान कर देता हूँ। वो कभी ऊँट ले आता है, कभी कुछ ले आता है। उसने कहा नहीं यार, उसने कहा मेरा बेटा इस्माइल जो है मेरे को सबसे प्यारा है। उसने कहा फिर उसकी कुर्बानी दो। तो उसको आगे लाकर ऐसा लिखा है कि अपनी आँखों में पट्टी बांधी उन्होंने। तो जो छुरी है उसको कहते हैं कि छुरी है मेरे बच्चे को मारना नहीं है, तो ऐसा करते हैं। तो वो ऐसा करते करते उन्होंने छुरी उसके ऊपर मारी। जब छुरी मार दी उसके ऊपर तो एक भेटू खड़ा था, उसने टक्कर मारी इस्माइल को, तो आगे कर दिया। तो भेटू नीचे आ गया तो काटा गया। जब काटा गया तो वहाँ बिल्कुल नहीं लिखा कि उसको खाया गया। आज पीर की दुब्बे की कुर्बानी देते हैं। जिसने पीर के पुत्र की जान बचाई है उसको तो पूजा करनी चाहिए, उसको मार के खाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे ये धर्म भी बन गया है, जिसके ऊपर कितने गुरु साहिब ने अपनी कुर्बानी दी। तो इसके बारे में सदगुरु राम सिंह जी ने कहा है कि नीला पहनना गऊ के चमड़े समान है। अब तो सिंथेटिक बनते हैं, लेकिन पहले नील एक बूटी थी जो मुसलमान बीजते थे। उसको जब गाल देते थे पानी में तो उसमें गऊ की खून के तुपके गिरते थे, तब वो उगड़ता था। एक भाई मोहन सिंह वैद, आपने शायद नाम सुना, तरनतारन में हुए हैं, वो आए थे भैनी साहब में। तो एक अकाली सिख सदगुरु प्रताप सिंह जी के साथ बात कर रहा था नीले के बारे में। तो उन्होंने कहा भाई मोहन सिंह जी ने कि ये बात सदगुरु जी की बिल्कुल ठीक है कि ये गऊ की हत्या के बाद बनता है। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की वाणी छपवाई, तो उसके ऊपर जिल्द बनवाई। जिल्द के ऊपर जो अबरी होती है, वो कागज़ जो होता है, वो कहते हैं कि वो उसका रंग नहीं खिलता जितनी देर वो गऊ की चर्बी ना लगे। तो उन्होंने कहा फिर हमने वो जिल्दें उखाड़ी और फिर दोबारा दूसरी जिल्द लगाई। तो इसमें हम तो अपने कोशिश करते हैं कि हमारे में नील, जब नील के ऊपर चलना होता है तो मेरे को बस मुश्किल आ जाती है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, ये सब जगह प्रवृत्त हुआ हुआ है ऐसा। तो इसके बारे में मैं आपको जो अर्ज दी है आपने देख लेना, वो आपको देंगे। तो आपने बहुत वक्त दिया और ये काम बहुत पवित्र काम है जो आपके हिस्से आया। जैसे सरदार बेअंत सिंह के हिस्से आया वो काम किया, ये आपके हिस्से आया। और पहले कुलपति जी जो थे उन्होंने भी यही काम शुरू किया और आपने भी ये कृपा की। और हमारे बहुत ही नज़दीक, मन से नज़दीक होने वाले उपाध्याय जी और राधे श्याम जी इतना वो अपने गंडीबम में लिखते रहते हैं। तो मैं याद करता हूँ जैसे आपने कहा है मेरे को, जैसे आपने लिखा है, आप ये अरदास करो मैं ऐसा हो सकूँ। मैं यही कह के